So in Indian Evidence Act, what we are supposed to read for preliminary, and obviously they are relevant for your mains also as well as for interview, because you cannot dissect evidence for these three different purposes. So you are required to read everything for all purposes, and I have seen the variety of questions in this DJS preliminary which can be useful even for those people who are appearing for interview, because there are many interviews right now. Is this clear? अब जैसे क्वेश्चन की आप जर्नी शुरू करें तो क्वेश्चन जैसे बेसिकली आते हैं 2019 में जो मैंने क्वेश्चन देखे 2019 क्वेश्चंस, दे आर वेरी इजी, दे आर वेरी वेरी इजी. You will not take time even 5 minutes to solve the question. I did not take. अभी मैंने solve किया था आपके सामने, बैठा हुआ था मैंने solve किया. So it did not take me much time. I solved it within 5 minutes because they are all related to sections. जो लोग पढ़े हैं उनको बात समझ में आएगी, जो नहीं पढ़े हैं वो देख लेंगे. जैसे क्वेश्चन पूछा alibi is governed by, कितना सेकंड लगता है बनाने में. Communication without prejudice, कितने लोगों को पता है कम्युनिकेशन विदाउट प्रेजुडिस इज इन विच सेक्शन ऑफ एविडेंस एक्ट? वेरी गुड, बहुत लोगों को पता है. चलिए ठीक. अंडर सेक्शन 27 तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में. ए डाइंग डिक्लेरेशन इज टू बी एडमिसिबल मस्ट बी मेड टू हुम? मजिस्ट्रेट, पुलिस ऑफिसर, डॉक्टर, सबको. कोई ऐसा है क्या किसको नहीं बनाना? ऐसा कुछ तो है नहीं. ऐसे opinion of an expert is relevant under which section? तो question बड़े easy आए. So sometimes you will find in preliminary or in interview or even in mains examination that the questions are very flat. You can answer them. But the point is when the question becomes difficult, then how will you answer them? And that is what we are required to focus on. So what we'll do, we'll refer to different provisions. Not much of cases. Cases are not very important in evidence law, I must tell you, except few which may be important due to the reason that they are very recent case. Like now, recent case on electronic evidence. How many of you remember? A recent case on electronic evidence. I have told you in this class. How many of you remember? Arjun Pandit Rao Kotkar. आपको मैंने बताया था, ये एविडेंस की क्लास में भी मैंने बोला है अपने इंटरव्यू सेशन में, और जिसमें उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के बारे में कहा कि सर्टिफिकेट इज नेसेसरी, बिकॉज दे हैड सेड इन बिटवीन दैट इट इज नॉट, बट अगेन दे चेंज द लॉ एंड दे सेड इट इज रिक्वायर्ड. सो डिसीजन अभी रिसेंट है, इसलिए आपके एग्जाम में आ जाएगा, इसलिए आप इसका ध्यान रखिएगा. अदरवाइज एविडेंस लॉ में केसेस और रिसेंट केसेस का बहुत रोल नहीं रहेगा. इन सम एग्जामिनेशन लाइक यूपी एटसेट्रा दे आस्क दोज काइंड ऑफ क्वेश्चंस. सो इफ यू व्हेन यू प्रिपेयर फॉर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, please take care of this fact that some cases, even in DGS it can come, even in other exams it can come, few cases, but not generally, because the question which are asked generally in evidence, they are either from the sections. तो क्या पढ़ेंगे आप? तो एक तो sections को पढ़ो, but sections को पढ़ना बहुत आसान नहीं है. I must tell you, when you read the sections, then you are required to now कैसे अब sections को पढ़ने में समस्याएं क्या आएगी, मैं आपको बड़ा आगाह कर दूँ. जैसे क्वेश्चन जो मैंने देखा, बड़े अच्छे क्वेश्चन आए हैं. रियली आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी ऑल दोज क्वेश्चन. जैसे सेक्शन 32 में एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा, और उसमें पूछ दिया जितने आपने लिखे ना 32 में 8 क्लॉजेज, इसमें जैसे लिखा इन्होंने थर्ड में अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ मेकर ना 32 3 + 2 = 5. सो 5 कैटेगरीज of things are written. 33 3 + 3 = 6. There are 6 categories in 33. If you have not read, listen to me carefully. So 32, there are 5 categories of situation where you can make a statement, and when it will be relevant, there are 8 clauses. अब उन्होंने क्या किया इसमें, ये जनरली आप ध्यान भी कर लेंगे. जैसे थर्ड वाले में लिखा है अगेंस्ट इंटरेस्ट ऑफ मेकर. अब इसी को उन्होंने इन फेवर ऑफ मेकर कर दिया. बाकी 3 ऑप्शन वही 32 के लिख दिए. अब जिन्होंने ध्यान से हेडिंग पढ़ी होगी या जिन्होंने समझा है, या तो आपकी समझ बहुत बेहतरीन है,
भाई कोई स्टेटमेंट हम अपने फेवर में देंगे जनरली रेलिवेंट नहीं होता है। आपने अपने दिमाग में कॉन्सेप्चुअलाइजेशन कर लिया है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर लिए, तो आप आराम से पास कर जाओगे। लेकिन जो नहीं भी बहुत अच्छा किए हैं, even they can pass if they have this habit of reading things very carefully and with precision. And they should not read it, they should rather study it. They should sit with the bare act. और इसका सबसे बेहतरीन तरीका जो मुझे समझ में आया, जैसे आप सेक्शंस को याद करना चाहते हो तो solve as many as questions and see then and there the section. Solve fast, then see the section. You perhaps may remember the words of section better. जैसे मैंने किया, मैंने आज सुबह सुबह 50 क्वेश्चन बनाए लगभग। आई वॉन्टेड टू सॉल्व इट इवन येस्टरडे बट आई कुड नॉट। बट आज मैं सुबह से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ तो मुझे इसमें बड़े अच्छे अच्छे सवाल दिखे। जैसे एक सवाल मुझे देख के बता, ये सेक्शन 32 वाला ही है, स्टेटमेंट ऑफ ए पर्सन हु इज डेड और कैनॉट बी फाउंड इज नॉट रेलिवेंट। तो मैंने देखा व्हेन इट इज मेड इन कोर्स ऑफ बिजनेस 32(2). अब मैं यहाँ लिखता हूँ बिकॉज आई एम नॉट इन हरी, or maybe that I am required to explain everything, so I have to take enough care. But whether you do it or not, take care. If you do it, it's better. Then again I wrote, when it relates to the circumstances of the transaction resulting in death, everybody knows 32(1). When it relates to existence of relationship, 32(5). तो आप ऐसे ही 32 का 8 कैटेगरी लिख लो। अब आपको पता चल गया ऐसे क्वेश्चन आते हैं, you write 8 कैटेगरी। So what happens, 32 के सारे सवाल आपके बन गए सेक्शन वाले। Then I might have taught you in the class when I was teaching that how you are required to remember this illustration and which illustration related to which part of section 32. So you can do it as well, but it will consume time. जैसे 32 पढ़ने में ही मुझे लगता है कि आपको लग जाएगा 30 मिनट, maybe 25 minutes if you are very smart. But you will take time. If you do not devote 30 minutes, then perhaps फिर 32 से question आए। Not only this, you know there is difference between English law and Indian law. DJS में question आया और भी exam में question आया। What is the difference? In English law, expectation of death is must, but in Indian law, it is very clearly written in 32(1) that expectation of death is not required. And this was the question in daily judicial services examination. So when you read questions along with Bare Act, and obviously you cannot understand Bare Act, I have told you, unless until you read class notes. So be careful about this. You are not reading different things. Some people think, अच्छा class notes भी पढ़ूंगा, Bare Act भी पढ़ूंगा, question भी पढ़ूंगा, इतनी सारी चीजें पढ़ूंगा। अरे तुम एक ही चीज तो पढ़ रहे हो, you are reading evidence law. So those who are confused people, they will think that I am reading 3 materials. But people like me who are not at all confused and cannot be confused by any means, he or she will appreciate I am reading only one thing. And it has to be read together. यदि नहीं करोगे तो your memory will not be sharp, I must tell you. If you read Bare Act only, you will never be able to remember that. जैसे अभी तुम्हें बताया ना, सेक्शन 32 की 4 बातें तो तुमने क्वेश्चन में पढ़ ली, 4 और लिख लो, 8 हो गई, 8 ही है ना, इससे ज्यादा तो नहीं है। एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ वाला भी बता दिया। अब इंडियन लॉ में है कि कॉम्पिटेंट पर्सन होना चाहिए, इंग्लिश लॉ में वो भी नहीं है। आप देख लेना, देयर इज डिफरेंस। यदि आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है और क्लास में पढ़ा है तो क्लास नोट्स में तो बहुत क्लियरली मैंने लिखवाया है। नहीं लिखवाया है तो इवन इन योर मटेरियल और बेयर एक्ट इट माइट हैव बीन रिटन समवेयर। क्लास नोट्स में तो लिखवाया हुआ है, वो मुझे अच्छी तरह से याद है। सो आई वाज जस्ट सेइंग, नाउ सिमिलरली आई सॉ सेक्शन 65B. Now you just, first we are required to read sections. Which sections I will let you know, but how the questions are framed, that is very important to know. Otherwise the questions, आप sections की list बना लो, but that is not going to help you at all, because you will not be able to memorize. You know this section 65B is related to electronic evidence, but what is written in section 65B? How will you memorize this? This is very important to know. So let me tell you, my dear friend, अब जैसे सेक्शन 65B पढ़ना मैंने शुरू किया, आप देख पा रहे सेक्शन 65B। अब इससे सवाल आ गया। अब जैसे ये 2A पढ़ो तुम, द कंडीशंस रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1 इन रिस्पेक्ट ऑफ ए कंप्यूटर आउटपुट शैल बी द फॉलोइंग। दोज who have done my classes, they know it very well. I have told them very clearly. I have taught them entire section. But those who have not attended my class,
they can listen to me carefully and they must read it with all care, caution and circumspection and with cool, calm head. You cannot be in hurry. It is not reading, it is understanding and studying. Reading will not do anything. ये आप नॉवेल तो पढ़ नहीं रहे हो, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ने का है. अब मैं आपके लिए एक पढ़ूंगा, आप ऐसे ही सारे पढ़ना. मैं एक पढ़ रहा हूँ, ध्यान से आपको बता रहा हूँ कैसे पढ़ना है. You are studying for preliminary. I am reading this 2A, the condition of computer, and see how care and caution is required to be taken in reading such provisions. If you do not take this care and caution, preliminary may be a hurdle for you, even interview or even mains, because you do not understand it. See this 2A. It says the computer output containing the information was produced by the computer during the period over which the computer was used regularly to store or process information for the purpose of any activity regularly carried on over that period by the person having lawful control. अब देखो इसमें कितनी चीजें आ गई. I will read other provision also. The question is on other part. But A मैं पढ़ रहा हूँ पहले. Computer output containing information was produced by computer during the period over which computer was used. It was not irregular that you keep this information, that information. You use this computer to store this information regularly. If this is not so, this is not going to apply. Or process information for the purpose of any activity. Which activity? Regularly carried on by the person, not by all, by the person having. अब इसमें एक भी वर्ड चेंज करके प्रिलिमिनरी का ऑप्शन बना देंगे, जैसा बनाया उन्होंने. जैसे क्या बनाया अभी आपको बताता हूं. तो 3 वर्ड पढ़ लिया आपने. पहले आपने पढ़ा रेगुलरली टू स्टोर और प्रोसेस इंफॉर्मेशन. फिर आपने पढ़ा रेगुलरली कैरीड ऑन ओवर दैट पीरियड, एक्टिविटीज रेगुलरली कैरीड ऑन. थर्ड आपने पढ़ा पर्सन हैविंग. दिस इज हाउ preliminary question is framed. Is this clear? Now, see, B is not so important, you can read it. C I am reading. Throughout the material part of the said period, the computer was operating properly as was out of control. Now, you see, throughout the material part of the said period, the computer was operating properly. This is one. It was operating properly. Or if not, then in respect of any period in which it was not operating properly, when it was not operating properly, or was out of operation, not operating properly, or was out of operation during that period of, was not such as to affect. It is not to affect. Even if it is not properly working, it is not going to affect your electronic record. It will be accepted. Now, this was the question in DJS. This is the question in DJS exam. आप जानना चाहते हैं कब ये सवाल आया? अभी बताते हैं आपको. आज ही मैंने एक क्वेश्चन बनाया, कहीं ना कहीं है, मैं भी आपको बता दूंगा without wasting your time. I have this question in this question paper, and I was really happy to see such kind of question, that they are asking such beautiful question which will require a student to work sincerely. They cannot read anything, and they cannot know this kind of approach is not going to be helpful in your examination. ये नहीं चल पाएगा, it's difficult. मैं अभी आपको बताऊंगा, लिखा है मैंने कहीं पर, पता नहीं दिख नहीं रहा अचानक ना. सो दिस इज अनदर काइंड ऑफ रीडिंग विच इज रिक्वायर्ड. जस्ट रीडिंग ऑफ सेक्शन इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू. ये आपको मदद नहीं करने जा रहा. बी केयरफुल अबाउट दिस कि हमने ये सेक्शन पढ़ लिया, वो सेक्शन पढ़ लिया, 2019 जैसा क्वेश्चन आ गया तो कर लेंगे आप, अदरवाइज संभव नहीं है. मैं आपको आगे का क्वेश्चन बताता हूँ. जैसे इन्होंने पूछा सेकेंडरी एविडेंस, 2018 डीजेएस क्वेश्चन है, बता रहा हूँ. This is a representative question of all examination. Secondary evidence cannot be let. Now this is exactly question on this part 61 to
65, you might be aware. 61 to 64 in particular. नहीं 65 में भी है secondary evidence. हाँ 61 to 65 then electronic evidence comes. Secondary evidence cannot be let. अब क्वेश्चन बहुत आसान है, कितने लोग आप में से बता पाएंगे, देख भी लेते हैं, बिकॉज ये क्वेश्चन जो है ना, कभी कभी क्वेश्चन इट इज बेस्ड ऑन योर कॉमन सेंस एंड अंडरस्टैंडिंग, आई मस्ट टेल यू. सो इट सेज secondary evidence cannot be let. A, when original is in possession of the other party. Original is of such nature that it is not easily movable. When original is in possession of the person who is out of the region, not subject to the processes of court. How many of you will answer? Just raise your hands. When original is in the possession of the person who wants to adduce secondary evidence, cannot be let. Question is, secondary evidence cannot be let. नहीं लाया जा सकता. अब देखो, बड़ा साधारण सा सवाल था, सभी लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं, बट सवाल बहुत साधारण है. This is what is where we lack. And it is not problem of one student, it is problem of general students, I tell you. या तो आप ऑप्शन ध्यान से सुने नहीं, मैंने ऑप्शन पढ़ा. When original is in the possession of other party. Original is of such nature that it is not easily movable. When original is in the possession of the person who is out of reach and not subject to the process of court. When original is in the possession of person who wants to adduce secondary evidence. In which case it cannot be let. Just raise your hands. अब देखो कैसे ये क्वेश्चन आंसर होगा. Some of you are raising hands. So one who has read section 65, he or she can answer it very easily. But question is, ये तो question अभी आया, section 65, do you remember exactly? Question is, do you know that section 65 has how many clauses? Do you remember that? Do you remember that in section 65 I have taught you in this class which kind of proof it is? आप ध्यान है कि नहीं कुछ? Section 65. And how will you prove this? Section 65 towards the end, in A, C, D, any secondary evidence. हमने यहाँ तक पढ़ाया क्लास में. But how many of you remember? In A, C, D, any secondary evidence will work. मैंने reason भी बताया था why it is so. So this kind of precision is required. Why you wrote in A, C, D, any secondary evidence will work? Why you wrote that in B, written admission is admissible? Now this can be another question. If the examiner is very smart, he will ask you such question also. You cannot prohibit and prevent him from asking such question. If he wants to raise the standard and he wants the best of the lot, he will produce best of the question. मैंने ये क्लास में पढ़ाया नहीं पढ़ाया? मैंने पढ़ाया है क्लास में, बहुत ध्यान से पढ़ाया, मैंने यहाँ भी मार्क किया हुआ है. बिकॉज मुझे बैरक बहुत बारीकी से पढ़ने की आदत है. आपको नहीं है तो आदत अभी से बदल डालिए, नहीं तो प्रिलिमिनरी में तो बहुत मुश्किल होगा. मेंस तो पास कर जाओगे, आई कैन गारंटी दैट. प्रिलिमिनरी आपको फंसा देगा. ये बहुत बुरा एग्जाम है, बस बता देता हूं, अच्छे अच्छे को ना लिमिट में ला देता है ये. अच्छे अच्छों को, टीचर्स, रिसर्चर सारे फेल हो जाएंगे प्रिलिमिनरी में, आप पास कर जाएंगे. क्यों? क्योंकि आपने ट्रिक को पकड़ लिया. अब आपको बता रहा हूं, सेक्शन 65 में ना तो सिर्फ आपको ये जी तक ध्यान करना है, बल्कि आपको ये भी ध्यान करना है कि ए सी डी को प्रूव करने के लिए क्यों एनी एविडेंस. तो दिमाग में एक लॉजिक बनाओ. बी में क्यों लिखा रिटन एडमिशन इज एडमिसिबल? अब भाई देखो बी में क्या लिखा है, पढ़ के देख लो. देखो इसी को कहते हैं बुद्धि.
when the evidence, condition or contents original have been proved to be admitted in writing. तो written admission ले आओ, काम खत्म. नहीं, ये तो बड़ा रट्टू है प्रिलिमिनरी. बिल्कुल भी नहीं. जो ये कह रहा है वो एग्जाम को बिल्कुल भी नहीं समझ रहा है. ना तो लॉ को समझ रहा है, ना एग्जाम को समझ रहा है. ये उसकी अपनी बीमारी है जो एग्जाम के ऊपर और सब्जेक्ट के ऊपर थोप रहा है. वो समझ ही नहीं रहा है. मैंने तो मना नहीं किया समझने से उसको, उसने खुद को मना किया है. तो मेरी गलती इसमें कतई नहीं है. आपको मैं अभी भी आगाह कर रहा हूं, कुछ भी पढ़ना तर्क से पढ़ना. तर्क से पढ़ना. तर्क से कैसे पढ़ेंगे इसका मैं संक्षिप्त उदाहरण अभी आपको फिर से दूंगा. एक तो आपको बता रहा हूं सेक्शंस कैसे पढ़ने. इतना क्लियर हो रहा है? सेक्शन पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि फटाफट सेक्शन पढ़ गए. अरे भाई पढ़ लिया, हाँ एविडेंस खत्म, वन डे. यार मिस्टर रंजन को पढ़ाने में तो 60 दिन लग गए थे. ऐसे कैसे खत्म हो जाएगा भाई? हाँ, लेकिन अभी का समय है. यू हैव एग्जाम एट हैंड. So those people who have exam at hand, they will study it fast. But even then, you have to take all care, caution, circumspection. I tell you. उन्होंने क्वेश्चन, हर क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं हुआ. देखो ये तो हाईएस्ट लेवल का क्वेश्चन मैंने प्रिडिक्ट किया. अब जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन बताया भी होगा शायद कि सेक्शन 25 में confession to police cannot be proved against accused. I drew your attention and I told you it can be proved in favor of accused. So if I say that this confession is inadmissible for all purpose, it's a wrong statement. It's a wrong statement. But generally held view is this. This is what is called a preliminary. So I was just dwelling upon this point that how we are required to read sections. अब उन्होंने सेक्शन 23 पे भी सवाल पूछा, सेक्शन 24 पे भी पूछा, सेक्शन 27 पे भी पूछा, सेक्शन 3 पे भी पूछा, 6 पे भी पूछा, 8 पे भी पूछा, 14 पे भी पूछा, 12 पे भी पूछा. सो आई कांट से कि ये वाला नहीं पूछेंगे. 9 पे भी पूछा. किस पे नहीं पूछा? And evidence law is not very lengthy subject. It's very short, swift paper. So you have to take care of this fact. And then there can be many concept-based questions. But obviously it hovers around Bare Act. So Bare Act is key in your understanding. So be careful about this. अब एक सवाल पूछा, आप देखो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन. सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन तो आप पढ़ेंगे ना. पहला तो आपने पढ़ना सेक्शन कैसे पढ़ना इसका मैंने आपको थोड़ा हिंट दे दिया. एंड डेवलप मेनी ट्रिक्स टेक्निक्स विच आर रिटन इन आवर बेयर एक्ट. जैसे आपको ध्यान नहीं रहेगा बहुत सारी चीज़ मैं बता दूं. जैसे आज ही मैं पढ़ रहा था सेक्शन 85 मुझे दिख गया कहीं, उसमें मुझे 85 में कुछ ABC दिखा. तो मुझे C में लगा कुछ कॉन्ट्रैक्ट टाइप लिखा. C फॉर कुछ है, हाँ, सर्टिफिकेट. तो मैंने अपने दिमाग को तुरंत कहा कि भाई इसको तो याद करने का तरीका यही हो सकता है. ए में एग्रीमेंट है. ये मैंने क्लास में बता दिया. कोई ऐसे नया चीज इजाद नहीं कर रहे हम. आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड दिस इन माय क्लास. इसीलिए बार बार आपसे कहते हैं YouTube पे जो फ्री लेक्चर है उसको आप, बड़ी कृपा होगी हम पे यदि आप उसको सुन लें. आई विल फील ऑब्लाइज्ड. ये पूरे भारत के बच्चों का मेरे पे एहसान होगा, वो मेरी बात को YouTube के माध्यम से जहाँ भी फ्री लेक्चर दिया हुआ है उसको सुनने का प्रयास करें. और यदि उनका जीवन बन जाए तो खत द्वारा हमें सूचित करें. आने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि आप जज बन जाएंगे तो आने की जरूरत नहीं होगी. फिर क्यों आएंगे आप? मुझे जरूरत भी नहीं है उसकी. मैं परिपूरित हूं.
संतुष्ट हूँ, सेवा अपना धर्म है। आप बस सुन लीजिएगा ध्यान से, यही मेरा आग्रह है। मैंने एविडेंस का एक लेक्चर डाला है ना, उस पर सुनिएगा जरूर, उसमें बहुत सारी ऐसी बातें बताई। अब ऐसे ही मैं पढ़ रहा था, जब आप चीज़ें पढ़ते बहुत सारी तो आपको ध्यान आता है कि अच्छी, तो मतलब बड़ा सरल था याद करना, इतने दिन से याद नहीं कर पाए हम। अब मैं पढ़ रहा था सिग्नेचर को साबित कैसे करोगे, हैंडराइटिंग को साबित कैसे करोगे, बार बार ये सवाल आता है। कौन से सेक्शन में? कोर्ट कहता है कि सिग्नेचर को कंपेयर कराओ। कौन से सेक्शन में? नहीं, 47 के अलावा बताइए, वो सुन लिया 47। कोर्ट सिग्नेचर को कंपेयर कराता है। है 73 क्या है भाई? जरा देखना, है ना? अब मैंने क्या किया याद करने के लिए, 73, 74 मैंने अपने दिमाग को एक गाइडेंस दिया हुआ है। आप देना चाहो तो मर्जी है आपकी, ना देना चाहो तो मर्जी है आपकी। मुझे पता है कि 99% लोग मेरी बात का अनुसरण नहीं करेंगे, क्योंकि वो जज बन जाएंगे। फिर प्रिलिमिनरी तो पास करने से उनको कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि इतनी बारीकी से कोई पढ़ेगा नहीं। अब मुझे याद है ये दोनों सेक्शन आपको याद करना पड़ रहा है, मुझे नहीं करना पड़ रहा है। ध्यान दीजिएगा, मुझे तो 73 याद है, 73 याद नहीं, 47 भी याद रहेगा तो भी 73 मुझे याद हो जाएगा। 73 के बाद आता क्या है? 74, और 74 को हमने रिवर्स कर दिया, क्या होता है? तो आप ऐसे याद कर लो या वैसे याद कर लो। मुझे याद है कि इन दोनों सेक्शंस में मैंने कुछ पढ़ा था, मेरे दिमाग में वो ना बैठा हुआ है बुरी तरह से, मैंने पढ़ा हुआ है। देखो, प्रिलिमिनरी एक डेंजरस एग्जाम है। कैसे बताता हूं आपको। एक क्वेश्चन पूछा एग्जाम में, भाई प्रूव्ड का क्या मतलब? बहुत आसान है बताना, आप तुरंत बता दोगे, बट एग्जामिनर इतना आसान नहीं है, वो भी मेरा प्रतिबिंब है, प्रतिरूप है हमारा। हमारी जैसा कोई व्यक्ति बैठा होगा, मैं तो नहीं हुआ। तो उसने क्या किया, ये वाला नहीं पूछा, ये कहता तो बहुत आसान है, तो ये पूछूंगा तो बच्चा तुरंत बताएगा। उसने कहा लो ये पूछो, इनसे पूछो ये क्या होता है, इनसे पूछो ये क्या होता है। पूछा उसने, भाई ये क्या होता है बताना। अब उसमें क्या बताऊं आपको कि क्वेश्चन आप बनाने जाएंगे तो शायद इसमें आप गलतियां कर जाएंगे। बेटा देख लीजिए, सेक्शन 3 में लिखा है ना। अरे भाई लिखा है नहीं लिखा है, जल्दी से देख के बता दो। ये पता है तीनों आपको मीनिंग पता है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बड़ी खुशी की बात है। हाँ, according to evidence act, a fact is said to be not proved when neither proved nor disproved। अब पता है, मैं जब बना रहा था तो पहले झटके मैंने भी कर दिया, कोर्ट बिलीव दैट द फैक्ट डज नॉट एग्जिस्ट। दिस इज व्हाट इज प्रिलिमिनरी। बट अपना क्या है ना कि जैसे ही गलती करता हूं ना, पढ़ा हुआ है 10, 20, 50 बार, तो दिमाग ना कहता है कुछ गड़बड़ हो गया यहाँ। तो वो ना अपने आप ऑटोमेटिक एक सायरन बजना, आप लोग को आवाज नहीं आएगी, यहाँ आती है आवाज, तुरंत सायरन बजता, क्योंकि मैंने इतनी बार पढ़ा है कि दिमाग में वो घूम रहा है कहीं कुछ गड़बड़ हो गया इसमें। मैंने बैरक निकाला, देखा हाँ ये तो गड़बड़। तो 10 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन किसी से भी गलत हो सकता है, इसके लिए परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। Don't try to be ideal. Perfection is divine. Imperfection is human. We are all imperfect, but we have to improve upon that. So कभी भी आइडियल सिचुएशन मत रहना हर कुछ याद ही हो जाएगा। 10% नहीं हो रहा है, इतना बॉदरेशन नहीं लेने का है, तो कोई भी एग्जाम पास नहीं करोगे, इसी चिंता में रह जाओगे। सो बी हैप्पी। 80%, 90% याद हो जाता है, काफ़ी आपके लिए। इन्होंने
सवाल पूछा, भाई सिविल केसेस में कैरेक्टर रेलिवेंट है नहीं है, क्रिमिनल केसेस में अब उसके 3 स्टेटमेंट बना के, ऐसे नहीं पूछे, इन सिविल केसेस द कैरेक्टर टू प्रूव द कंडक्ट टू ए पार्टी इज नॉट रेलिवेंट, इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग बैड कैरेक्टर ऑफ द अक्यूज्ड इज नॉट रेलिवेंट अनलेस एविडेंस ऑफ गुड कैरेक्टर हैज बीन गिवन। अब देखो जो पढ़ा है ही विल रिमेंबर। अब हम लोगों ने क्लास में कितनी बार चर्चा की थी, वही प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस है, तो even if you say that he is of bad character, court is not going to believe this. But the moment he comes and says, I am of good character, court will say that how are you of good character? The other party will bring the evidence to prove that you are not of a good character. Then it becomes relevant. So अपने बारे में ज्यादा बखान करोगे तो फंस जाओगे। इसीलिए मैंने पहले ही कह दिया ना, imperfection is human. हमने कभी कहा ही नहीं आई एम परफेक्ट। देखो आप अपने से रिलेट करके चीजों को याद कर सकते हो, ऐसे नहीं हो पाएगा। ब्लॉक्स तो याद होंगे, अभी मैं एविडेंस का आपको चित्र बताऊंगा कैसे याद करना है। तो सिविल केसेस में नॉट रेलिवेंट, क्रिमिनल प्रोसीडिंग में बैड कैरेक्टर इज नॉट रेलिवेंट, इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग प्रीवियस कन्विक्शन इज रेलिवेंट एज एविडेंस ऑफ bad character. Previous conviction of accused is relevant as evidence of section 54 का explanation. अब देखो जो section 54 का explanation 2 याद रखेगा वो section 14 का explanation 2 भी याद कर लेगा। अब ये जेम्स स्टीफन ने अपनी किताब में नहीं बताई है, ये किसी भी किताब में नहीं लिखा है, मैं बता रहा हूं, इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनना है। आप नहीं सुनोगे तो बाद में पछताओगे, पहले ही बता दे रहा हूं। सेक्शन 54 के एक्सप्लेनेशन 2 में जो लिखा है वो सेक्शन 14 के एक्सप्लेनेशन 2 में सिमिलर बात लिखी है, जल्दी से देखो। हाँ देखो, हाउ वी मेमोराइज थिंग्स, दिस इज द वे ऑफ मेमोराइजेशन। अब मुझे बहुत आसानी से याद हो जाएगा 14 का एक्सप्लेनेशन 2 और 54 का एक्सप्लेनेशन। एग्जामिनर तो यहां तक पूछा कि 14 के एक्सप्लेनेशन 1 में लिखा है, 2 में लिखा है, 3 में लिखा है, 4 में। अरे भाई 14 में 2 ही एक्सप्लेनेशन है, 3 4 कहां से आ गया? दो ही एक्सप्लेनेशन ही है। The preliminary is an examination of art and craft. It is examination of skill. It is not only exam of information, mind you मेरे words जो बता रहा हूं, it is examination of skill, not of information. रट लूंगा, कितना रट लूंगा भाई, कितना रट लोगे तुम? प्रोसेसिंग करो ना इंफॉर्मेशन की। प्रोसेसिंग कैसे करोगे, इसी में सारा खेल है। बिकॉज सिर्फ पढ़ने से नहीं हो पाएगा ये, तुम्हें ना एग्जाम के लिए दिमाग लगाना ही पड़ेगा। अच्छा ऐसे 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 मुझे दिमाग में बनाना है पिक्चर, क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ लिखी है। अब देखो बहुत आसान से सवाल भी आते हैं, जैसे आपने सेक्शन 30 पढ़ा है। देखो मैं तुम्हें बताऊं, सेक्शन 30 क्या है? सी कौन सा अल्फाबेट है? थर्ड। और ये कौन सा लेटर है? तो सेक्शन 30 में क्या है? 13 क्या है? को एक्यूज्ड। अब इसमें कहता है कि यदि जॉइंट ट्रायल होगा तो रेलिवेंट होगा ये इंफॉर्मेशन, यदि जॉइंट ट्रायल नहीं होगा तो नहीं होगा। अब इलस्ट्रेशन बी को देख लो, सवाल पूछ दिया उस पर, भाई ए एंड आई दोनों का ट्रायल हो रहा है फॉर मर्डर ऑफ ए इज ऑन द ट्रायल फॉर मर्डर ऑफ सी, देयर इज एविडेंस टू शो दैट सी वाज मर्डर्ड बाय ए एंड बी एंड बी सेड दैट ए एंड आई murdered C. As against this evidence is not to be taken into consideration as A and B are not being tried jointly, क्योंकि A is on trial लिखा है पहले ही लाइन में, सिर्फ A का ट्रायल हो रहा है, जबकि ट्रायल होता है A एंड B का तो रेलिवेंट, ये जॉइंट ट्रायल में रेलिवेंट है, इंडिविजुअल ट्रायल में रेलिवेंट। तो इलस्ट्रेशन से भी सवाल आते हैं। जैसे और भी सवाल मैंने देखे,
सेक्शन 3 के इलस्ट्रेशन से सवाल पूछा है। तो देखो मोटे तौर पे जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि देखो भाई कुछ तो चीज़ें आपको दिमाग में बिठानी पड़ेगी, जैसे सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट, सेक्शंस को पढ़ो तो डिथ्रेड करके पढ़ो, एनालाइज, डोंट रन, रिलेट, कंपेयर। अब ये कितना कर पाओगे आप, दैट इज योर कॉम्पिटेंस। I have done to an extent for you in my class and in that lecture too, so you can listen to that lecture. Then furthermore, you pick the relevant points of section, relevant points. एक section में हो सकता है दो बातें relevant हो, and it may be other way that there may be 5 things which may be relevant, 10 things which may be relevant. So just note down that in synopsis. एविडेंस एक ऐसा विषय है जिसको पढ़ने में आपको 3 दिन लग जाएंगे, बट दिस विल बी योर्स देन। एविडेंस, सीपीसी, सीआरपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, ये सब पढ़ने में 3 दिन के आसपास लग जाएगा कम से कम। इट मे बी लिटिल बिट मोर, so don't run, otherwise it will make fun and fun of you. पूछेंगे आपसे, कुछ जवाब ही नहीं दे पाओगे, तो ऐसा पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। And I strongly recommend that when you read the section, one way can be this, that you solve the question and see the section then and there. बहुत लोगों को नहीं होता है concentration का problem. Concentration will be very very good if you solve the question, see the section, solve the question, see the section. If you cannot force yourself to study now with all concentration for long hours, then this is the methodology. आप innovate करो method को, and never study when you are feeling that you are less of energy. I said in today's class in the morning, I think that I slept twice yesterday because I was looking into the papers and I was feeling after 90 minutes and 1 hour, 30 minutes that I am not having that much concentration. So I slept for 5 minutes, again for 15 minutes. My wife asked me also, are you not feeling well? I said, no, I am perfectly feeling well. But this is my way of learning. मैं फोर्स नहीं करता लर्निंग को अपने ऊपर, नो, इट शुड बी वेरी फ्रेश। और सबसे पहले सुबह उठ के पढ़ता हूं, बिकॉज द माइंड इज वेरी वेरी फ्रेश। इज दिस क्लियर? सुबह उठा, 1 घंटे में मैंने इतने सेक्शन देख लिए फटाफट। 8:30 अगेन न्यूज, क्योंकि एग्जाम देना ना जुडिशरी का मुझे, ऑल इंडिया न्यूज। Lux Sen was defeated by world number 1 बैडमिंटन। प्रधानमंत्री made a statement, do you remember that? नहीं, पता नहीं आपको। प्रधानमंत्री जी ऑस्ट्रेलियन काउंटर पार्ट से मिलने, पता आपको, चल रहा है उनका लाइव। क्यों ये सब जानोगे तुम लोग? बिल्कुल नहीं जानने का। मैं पढ़ूंगा ना, मेरे को जुडिशरी एग्जाम देना है, पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा, डोंट वरी। मेरे को एग्जाम देना है जुडिशरी का, मुझे भी जज बनने का है। So dethread, analyze, relate, compare. अभी भी नहीं कर रहे हो, अब शुरू कर दो। ग्रुप्स, क्या कर रहा था अभी? 47, 73, क्या कर रहा था मैं? जब भी इधर कोई चीज पढ़ो, अच्छा देखना तो 36 में मैप्स, प्लान्स, चार्ट्स है कि नहीं है? कैसे याद करते हो ये? इसके तरीके हैं, मैंने आपको कई बार बता रखा है, 1 वर्ड कर लेना। सेक्शन 32 में 8 थिंग्स हैं, तो 8 थिंग्स के 8 वर्ड्स तो लिख सकते हो। मैंने एक तो तरीका बता दिया, 3 + 2 = 5, 5 सिचुएशंस। कौन से 5 सिचुएशन है भाई? सबको पता है, बोल नहीं पा रहा या बता नहीं पा रहा ना, या मिल नहीं रहा है, इनकेपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस, यू कैन जस्ट नाउ build up. And 33 में the one more, what is that one more? मैंने हिंदी फिल्म की चर्चा की थी क्लास में,
When he is prevented, stop. नहीं आने दूंगा कोर्ट में तुम्हें, वो 33 है, वो 33 उस पर भी सवाल है। तो ये वीविंग ऑफ सेक्शंस जो है ना, वन वर्ड ग्रुप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो आपको करना ही करना है। मैं आगे चलता हूं। अब देखो, मैंने आपको पढ़ाते पढ़ाते बताया होगा, नहीं बताया है तो कोई भी जो क्लास किया हुआ उससे हेल्प ले लो। मैंने क्लास में बहुत समय बताया इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस। ऐसे तो सारे इलस्ट्रेशंस एविडेंस के इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं। ऑलमोस्ट ऑल इलस्ट्रेशंस इन एविडेंस एक्ट इज इंपॉर्टेंट। छोटा एक्ट है, you can do it also, and again in that you can pick the point, right point. जैसे सेक्शन 14 में पढ़ा, साइंटर रूल पढ़ा, the owner does not know that my dog has bitten somebody, but once he knows, state of mind में नहीं हो, knowledge। तो आपको वो ना तरकीब ढूंढनी पड़ेगी। 6 में रेजिस्ट्री, 7 में स्कोप, 8 में पीसीएम, 9 में 9 थिंग्स, 10 में कॉन्स्पिरेसी, 11 में एलिबाई। जब मैं था तो हरी नाई, मैं घमंड, मैं, ये मिस्टर रंजन कौन है, मैं। तो मैं में ही रह जाओगे। फॉलो रंजन, अदरवाइज मैं में रहो, फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई परेशानी थोड़ी है। तुम जज बनोगे नहीं बनोगे, मुझे क्या मिलने वाला, मुझे तो सिर्फ सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि मेरे बच्चे बन गए, बाकी मुझे क्या लेने देना। तो मैं ना कहानी में हो जाएगी। 12 में क्या है, डैमेजेस, उधर नहीं देखने का। 13 में कस्टम एंड राइट, 14 में स्टेट ऑफ माइंड, 15 में एक्सीडेंटल, 16 में कोर्स ऑफ बिजनेस। अब देखो ये ग्रुप है, अब देखो हम इसको याद करेंगे, अभी अभी बताते हैं आप। तो सेक्शंस पढ़ना, इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस पढ़ना है, क्लियर। थर्ड थिंग, देयर आर मेनी इंपॉर्टेंट सेक्शंस, जैसे 6 to 16 तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 6 to 16 में मैं बताऊं आपको, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 12, 13 ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। 14 ना, मे बी 15, 16 पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं इलस्ट्रेशन पे, बट नॉट सो इंपॉर्टेंट। अगेन 18, 19, 20, दिस इज हु विल मेक एडमिशन, हु विल मेक, अब देखो ये ग्रुप है, हु विल मेक एडमिशन 18, 19, 20, नहीं, हु विल मेक एडमिशन। अब 21 के इलस्ट्रेशन पे सवाल पूछ दिया, वो जा रहा है, वो बेचने के लिए कह रहा है मैं इससे कम पे नहीं बेचूंगा, कंडक्ट। ट्वेंटी टू क्या है, ओरल कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट। 23 कही जाए विदाउट प्रिजुडिस। 24 to 27 एवरीबडी नोज, कन्फेशंस। 24 to 30 रादर, पर्सन इन अथॉरिटी, पुलिस वाला। 26 मैजिस्ट्रेट, 27 डिस्कवरी, वन वर्ड। 28 is reverse of 24. When this threat, inducement, promise is removed, what will happen? 29. That is related to section 164 of CRPC. Extrajudicial confession. 164 deals with judicial confession. It is extrajudicial confession where confession is given to anyone else but not to a judicial magistrate. 30 confession of co-accused. 31 admissions may stop. Now, there can be question on evidentiary value of all this. See, I tell you, now, just you move further, then I come back and I tell you, these are relevant facts which you are discussing. So, how many relevant facts? तो आपने एक चित्र बनाना, जैसे मैंने अपने बैरक में एक चित्र बनाया, आप भी अपने बैरक में एक चित्र बनाना और इसको अच्छे से समझना। This can be done by anyone, nothing great here. But though, if you have this
बेयर एक्ट इन योर हैंड, जैसे मैं ये बनाता हूँ, मैंने ये चार्ट बनाया, मैंने लिखा सबसे पहले anything can be proved by relevant fact which may be connected, admitted, a statement by non-witness or given in special circumstance or may be in form of judgment or opinion or character kind of fact. मुझे याद हो गया. अब मैंने एक स्टेटमेंट, जैसे गाना याद करते हो ना, वैसे ही याद करना होगा. ये याद करना होगा. ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, आप याद कर लो. मैं बता रहा हूं, एनीथिंग कैन बी प्रूव्ड बाय रेलिवेंट फैक्ट, ये लेक्चर बार बार सुनना, विच मे बी कनेक्टेड 6 to 16, admitted 17 to 31, statement by non-witness 32 to 39. Is this correct? Or said in, no, all right, 32, 33, बिल्कुल सही. Or said in special circumstances 34 to 39. बिल्कुल सही, 34 to 39. Special circumstances 34 to 39. So if you say anything wrong, you will automatically correct yourself. Auto correction. कंप्यूटर में आता है ना, आता है ना ऑटो, तो वैसे ही हो जाएगा यहाँ ऑटो. ऑटो कट, जैसे ही गलत बोला कट. 34 to 39. Then it may be in form of judgment, or it may be in form of opinion, or it may be in form of character. JOC. Judgment, opinion, character. Now, if you want to remember this further, भाई कहाँ क्या लिखा है, वो इसकी भी तरकीब है. देखो, आपको तरकीब तो बनाने पड़ेंगे, दैट यू कांट अवॉइड. अब जैसे मैंने कहा कनेक्टेड फैक्ट, कनेक्टेड में कहा 6 to 16 है, तो 6 रेजिस्ट है. अभी आपने ध्यान किया 7, आई टोल्ड यू, S for 7, S for स्कोप, कॉज, ओकेजन, अपॉर्चुनिटी. नाउ अब देखो ना, स्कोप SCOPE, स्टेट ऑफ थिंग्स, occasion, cause, effect, opportunity. This is in scope, SCOPE. PCM, physics, chemistry, maths. Preparation, conduct, motive. अब ये बेयर एक्ट में नहीं लिखा है. This is written in your class notes and it is spoken in the lecture. So you listen to that or you read that. You can't now read bear act without reading your class notes. ऐसे याद नहीं हो पाएगा, I must tell you. So you will be putting yourself under tremendous pressure. Don't do it, for God's sake. 9 things. फिर क्लास में लिखवाया मैंने, क्या क्या है 9 things, क्या क्या है, जल्दी बोलो. Supporting, introductory, rebutting, explaining, time and place, relation. Time and place, relation. Supporting, rebutting, introductory, explanatory, time and place, relationship of parties. These are the things you can see. These are the things. भाई देखो, सपोर्टिंग, रिबटिंग तुम्हें पता चल गया, इंट्रोडक्टरी, एक्सप्लेनेटरी पता चल गया. आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन एंड प्रॉपर्टी भी तो होता है, एंड टाइम एंड प्लेस हो ही गया, एंड रिलेशनशिप हो ही गया. आइडेंटिटी ऑफ पर्सन और प्रॉपर्टी, आइडेंटिफिकेशन परेड भी तो यही है. 10 में कॉन्स्पिरेसी, 11 में एलिबाई, 12 में डैमेजेज, 13 में कस्टम और राइट्स, 14 में कहा माइंड, स्टेट ऑफ माइंड, where intention and knowledge, all those things are. I said Sainter rule, where the now owner has come to know that my dog is of vicious propensity, so he will be held furthermore. But till this time he was not aware. Dog is entitled to 1 bite, tiger is to none. Always remember that tiger is wild animal, dog is considered pet animal. So if dog has bitten once, now it will be considered wild and owner will be held alive. That's now 15, it says accidental or intentional.
तुम्हारी गाड़ी बार बार 31 दिसंबर को एक्सीडेंट हो जाती और एक को नहीं आ जाती, इंश्योरेंस क्लेम भी मिल जाता है, ये बड़ा इत्तेफाक है। जहां जहां शनि जाता है वहां वहां घर जल जाता है। आपने शायद वो पढ़ा है कि नहीं, माइथोलॉजी में सिर्फ भगवान ने लंका बनवाई थी और कितनी बार उन्होंने घर बनवाया था, फूस का घर बनवाया, किस किस चीज का घर बनवाया शनि भगवान हर बार। इस बार उन्होंने लंका का घर बनवाया सोने का, इस बार बोला इस बार नहीं जलेगा, और जलेगा तो कुंदन बनेगा ये तब के। इस बार रावण भगवान आ गए और उनका सोने की लंका दक्षिणा में ले गए। आपने सुना नहीं सुना पता नहीं, हर बार घर बनाते हैं और घर चला जाता है, एक्सीडेंट तो नहीं हो सकता ये। जैसे आपका कोई स्टाफ हो, हर बार उससे कुछ पूछो, कुछ न कुछ बहाना आ ही जाता है, हर बार बहाना, हर बार तबीयत खराब, आपको क्या शक होगा? ये एक्सीडेंटल। क्लियर? दिस व्हाट इज एविडेंस? एविडेंस लॉ इज एक्सपीरियंस लॉ। जो जितना दिमाग लगाएगा उतना सीख के जाएगा एविडेंस लॉ। इज दिस क्लियर? तो 16 हो गया, अब 17 में एडमिशन है क्या, जरा बताना। फिर कहा 18, 19, 20 में कौन एडमिशन करेगा, बताना। पिछले दिन भी पूछा था, जब वो एजेंट रहेगा तब। अब तुम देखो इसमें, अब तुम्हें क्लास नोट्स में बताया हुआ है कैसे इसको याद करना है, कौन कौन एडमिशन करेगा, कब करेगा, क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल उसी से बनेगा। तो क्लास नोट्स के बिना तुम कभी बैरक नहीं पढ़ पाओगे। और नहीं है क्लास नोट्स, यदि मेरे क्लास नहीं किए हो तो आगे पढ़ लेना, बट अभी तक के लिए पढ़ लो। 18, 19, 20 कौन करेगा एडमिशन? 21 में उसका एक्सेप्शन लिखा, 22 में कहा ओरल कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट, 23 में विदाउट प्रेजुडिस, 24 में कन्फेशन गिवन टू पर्सन इन अथॉरिटी वेयर देयर इज एक्सपेक्टेशन। इस पे भी सवाल आया, एक्सपेक्टेशन दैट ही विल गेन सम नो एडवांटेज, देन दैट इज रेलिवेंट, अदरवाइज नॉट रेलिवेंट। इज दिस क्लियर? अच्छा, अब तुमने सवाल पूछा कि कस्टडी ऑफ पुलिस, तो पूछा कस्टडी ऑफ पुलिस क्या होता है? द मोमेंट सर्वेलेंस ऑफ पुलिस स्टार्ट्स एंड वेयर इट एंड्स, दिस इज कस्टडी ऑफ पुलिस। He may not be in physical possession of police, he may not be in physical custody of police. Custody is not only physical, it can be even constructive in that sense. अब देखो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आएंगे। कस्टडी का मतलब ये नहीं कि आप पुलिस के कब्जे में ही हो, पुलिस आप पे सर्वेलांस रख रही है, वो भी कस्टडी है। आप पुलिस के भय में हो, औ में हो, कैन यू बी फ्री? So when FIR is given to police and if it is confessional, do you accept this as evidence against that criminal? No, because this is confession to police. पुलिस जहां आ गया वहां भय प्रज्यूम कर लिया जाएगा, there will be presumption of some kind of fear. So section 25, 26, confession given in police custody may be relevant when it is in immediate presence of a judicial magistrate. 27, discovery. Of discovery which leads to now the fact which is distinctly related. What is this distinctly related? अब इसी पे सवाल बना दिया, 4, 5, 6 केस हैं इस पर बहुत अच्छे। ट्वेंटी 8 ने कहा जैसे ही तुमने वो थ्रेट इंड्यूसमेंट प्रॉमिस हटाया वैसे ही कन्फेशन रेलिवेंट हो जाएगा। 24 में मना किया था, 28 में अलाउ कर दिया। अब कभी कभी इससे रिलेटेड केस भी पूछ देते हैं कि देववन उपाध्याय वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में था, यू नो दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड और नॉट, 24, 25, 26 and 27 is exception of that. So that kind of question may also be asked. So just have a glance, उसमें बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, फोकस बेयर एक्ट पे ही रहेगा। बट बेयर एक्ट की प्रोसेसिंग कैसे करेंगे ये आपको कॉन्सेप्ट से, ये आपको अपने क्लास नोट से ही पता चलेगा, क्योंकि उसकी प्रोसेसिंग आप नहीं कर पाओगे, वो मुश्किल हो जाएगा, रिदम नहीं बना पाओगे फिर।
और रिदम नहीं बनेगा फिर मेमोराइजेशन नहीं हो पाएगा। अब 31 में जो भी रेलिवेंट बातें लिख लेना कि साहब अच्छा ठीक है 31 ने कह तो दिया कि भाई एडमिशंस में स्टॉप, बट इसका रेलिवेंस क्या है। अब काश्मीरा सिंह का केस है, इसमें तुम्हारे मेंटल में लिखा हुआ, मैंने बेयर पॉइंट लिखाए हैं और तुम्हारे बेयर एक्ट में भी लिखे हैं। बेयर एक्ट में भी सब कुछ लिखा है, लेकिन वो प्रोसेस नहीं कर पाओगे आप पढ़ने से। वो क्लास नोट्स का सहारा लो, क्वेश्चन पेपर का भी सहारा लो। यू सॉल्व क्वेश्चन, सी बेयर एक्ट, सॉल्व क्वेश्चन, सी बेयर एक्ट, सॉल्व क्वेश्चन, सी बेयर एक्ट। मैं बार बार बता रहा हूं, दिस इज यूनिक मेथड ऑफ लर्निंग एंड मेमोराइजिंग। Unique method, and formulate similar question in your mind. Mental formulation of question is much more desirable than physical formulation of question at this juncture, because you are not having time right now. अब जैसे ही मैं एक क्वेश्चन पढ़ता हूं, मेरे दिमाग में वैसे ही सिमिलर दूसरा सवाल तुरंत आता है। तो मेरे को क्या क्वेश्चन तुम पूछ लोगे जो मैं, हो सकता है मे बी out of 100 questions, I may not solve 5-10 questions. So that should not be a worry for me. Even if I solve 80 question, I am comfortable. Why to vouch for that 100? पता चला 100 के चक्कर में 90 नहीं, 60 भी नहीं कर पा रहे हो। If you run very fast, there is always fear of that you will fall down. He that is down needs he that is down, he does not fear of that fall. एक वॉल्टर डिला मेयर ने लिखा था, he that is down needs fear no fall. कुछ ऐसा था, आपने पढ़ा हो शायद, पोएम कुछ ऐसा था। आप बहुत ऊंचा मत भागने का प्रयास करो। There is not advisable strategy, मैंने आपको बता दिया। Rest is your choice. So let us go further. 18, 19, 20 is very important. 21 is very important. No, 23 is very important. अब देखो 24 to 30 तो एक ग्रुप है, तो इसमें 6 और 27 ये सब तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बट ये ग्रुप है। ये 31 is relevant, 32 is very relevant, 33 is very relevant, but 34 to 39 is not so relevant. But what I will suggest, you remember one word. कब फंसा देगा, मैचिंग क्वेश्चन बना दिया, लो कर लो। अब बात तुम एग्जामिनर को जाके बोलोगे व्हाई डिड यू आस्क दिस क्वेश्चन, वो तुमसे बहुत कठिन सवाल नहीं पूछ रहा है। दिस क्वेश्चन ऑफ अवेयरनेस, स्टेटमेंट अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस। कहा लो जी हम वन वर्ड बनाएंगे। 34 में क्या है, अकाउंट्स, पेजेज, बुक्स, कुछ याद आ रहा है ना। 35 में क्या है, कौन से डॉक्यूमेंट्स, public, which is made in official course or something like that, no? 36 PCM, PCM। अब तुम देखो 8 तुम्हें याद था, PCM, 36 PCM। $37 में क्या, नोटिफिकेशन। किस चीज का नोटिफिकेशन, लॉ बुक्स और वो है ना। नोटिफिकेशन क्यों बोल रहे हो तुम, रुको, रुक जाओ, ऐसे ही याद होता है। दिस हाउ वी रिमेंबर, वी आर नॉट इन हरी, आई एम नॉट इन हरी। तो 34 हो गया, बुक्स, एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट, अकाउंट बुक, राइट डाउन अकाउंट बुक। 34 में पब्लिक रिकॉर्ड, 36 PCM, and 37 acts or notification, fact of public nature, act or notification, and 38 any law in law books, यानी एम्बिशन पब्लिकेशन की किताबें।
स्टोरी में भी रहता है, एडीएम ने नोटिफिकेशन दी लॉ पे, एडीएम ने नोटिफिकेशन दी और लॉ बन गया, ऐसी लॉ बन गया। नोटिफिकेशन लॉ। वेरी गुड। एडीएम ने नोटिफिकेशन दिया और लॉ बन गया, बहुत अच्छा। ठीक है, इसके बाद हाउ मच ऑफ स्टेटमेंट इज टू बी प्रूव्ड, जितना रेलिवेंट है उतना बताओ, बाकी कहानियां मत सुनाओ। कितनी बार बताया ये भाई, जो रेलिवेंट है वो बताओ, बाकी की कहानियां मत सुनाओ, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। कोई फिल्म हिट क्यों करती, कोई फिल्म फ्लॉप क्यों करता है? तुमने रेलिवेंट बात बताई और ढंग से बताई। आलतू फालतू बताओगे तो कौन तुम्हारी बातें सुनेगा? कोई नहीं सुनता किसी की बातें। 39 उतना ही बताओ जितना रेलिवेंट है, संक्षेप में बताओ, काम की चीजें बताओ, बाकी कहानियां मत सुनाओ। अब जजमेंट पे आए हो। अब देखो, इन सबों को भी ना जब तक तुम लय ताल में नहीं पढ़ोगे ना, तब तक पकड़ नहीं पाओगे। जैसे जनरल रूल है रेलिवेंसी एंड इफेक्ट ऑफ जजमेंट 42 में नहीं, और 43 में, जजमेंट अदर देन दोज मेंशन्ड इन सेक्शन 42 व्हेन रेलिवेंट। तो जजमेंट जनरली रेलिवेंट होता नहीं है, क्योंकि एवरी केस इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ऑन फैक्ट, बट समटाइम्स इट विल बी रेलिवेंट, बट व्हेन इट विल बी रेलिवेंट दैट इज रिटन इन 42। सो 43 में लिख दिया कि जजमेंट रेलिवेंट नहीं होता है, बट तुम्हें ऐसे ही याद भी करना पड़ेगा, बिकॉज इफ यू वांट टू रिमेंबर लाइक दिस, 40 में लिखा है 41 में, तो ऐसे नहीं याद होने वाला। यू चेंज योर मेथड ऑफ लर्निंग, व्हाट आई एम सेइंग। 43 में जजमेंट रेलिवेंट नहीं होता है, एक्सेप्शन 42 में कब रेलिवेंट होगा, और 44 में रेस जुडिकाटा विल नॉट अप्लाई बिकॉज यू आर फ्रॉड। तुम फ्रॉड करके जजमेंट लोगे तो रेस जुडिकाटा थोड़ी अप्लाई करेगा। फिर आए ओपिनियन पर। भाई इलेक्ट्रॉनिक वाला तो ए में ही आएगा ना, बताओ ना। इतनी मोटी बात तो जरूर ध्यान रखना चाहिए हम लोग। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर भी 47 ए में। अब देखो, तुम अपने दिमाग को बताओ कि 47 में व्हेन वी हैव रिटन हैंड राइटिंग इंक्लूड सिग्नेचर ऑल्सो, तो 47 ए में ही तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होगा। तो ये रुक के अपने आप को समझाओ, रन थ्रू, नो रन थ्रू। चिंतन मनन अध्ययन देन अध्यापन, जो हम लोग करते हैं, बैठ के चिंतन मनन करते हैं, ऐसे ही नहीं पढ़े जा रहे, देन यू विल बी एक्वायरिंग गुड अमाउंट ऑफ नॉलेज, यू विल नॉट बी एबल टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन। जैसे गुड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन विल बी ऑब्टेन्ड व्हेन यू रीड अ लॉट, जैसे लॉयर्स जजेस रीड अ लॉट, so they acquire good amount of information. But your job is not only acquisition of good amount of information, your role here in judicial aspirant or as aspirant of other examination is to process information. So your role is a little bit different. आपकी भूमिका थोड़ी सी हट करके है। आप केवल जजमेंट पढ़ के आप पास कर जाएंगे ऐसा संभव नहीं है। जजमेंट पढ़ के आप अच्छा जजमेंट लिख डालोगे, पास करना है तो ये ट्रिक्स एंड टेक्निक्स अपनाओ, थोड़ा रुक के सोचो। अच्छा ये बताओ भाई, इलेक्ट्रॉनिक वाला तो बाद में आया था, तो सारे ए में ही आएंगे? हाँ ए में आएंगे, कौन सा कहाँ आएगा जरा बताओ। तो यदि सिग्नेचर 47 में है तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर 47 ए में ही आना चाहिए। ये बहुत कठिन तो नहीं याद करना, जिसको आपने कठिन बना रखा है। अरे दोस्त बताना इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर कहाँ आता है। अब उसको 4 ऑप्शन दे दिया, बेचारा परेशान है। कभी ऊपर देख रहा है सूर्य भगवान की तरफ, कभी धरती माँ की तरफ, कभी सामने हनुमान मंदिर दिख रहा है, और पीछे घूम करके शिव मंदिर दिख रहा है। सबसे आशीर्वाद मांग रहा है वो, कोई उसकी मदद करने के लिए नहीं आ पा रहा है, क्योंकि उसने स्वयं की मदद तो स्वयं की मदद करना सीखो। स्वयं का मदद यही तो है
भाई इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर यदि कहीं होगा तो कहां होगा? सिग्नेचर के बाद होगा। और छोटी सी बात थी बट मैंने आपको बता दी। राइट और कस्टम, ओपिनियन एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ राइट। अब देखो, तुमने राइट और कस्टम वहां पढ़ा 13 में और यहां भी पढ़ रहे हो 48 में, थोड़ा सा रिलेट कर लो ना। यही मैंने तुमसे कई बार कहा कि तुम जो जो सेक्शन रेलिवेंट है उसको एक जगह लिखो। थर्टीन में था ना? अब किस चीज का ओपिनियन पूछ रहे हो भाई? पहले तो ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट, क्या वैल्यू होती है इनकी, ये पूछ देगा। देखो, इन ऑल दिस सेक्शंस देयर विल बी अ क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एविडेंस? नाउ सेक्शन 6 to 55 answers a question which facts are relevant. You add question from my side, why these facts are relevant, and you add further question that what is the evidentiary value of this fact. जैसे एडमिशन का एविडेंसरी वैल्यू क्या है, कन्फेशन का एविडेंसरी वैल्यू क्या है, कन्फेशन का एविडेंसरी वैल्यू सेक्शन 25 में क्या है, 26 में क्या है, 27 में डिस्कवरी की क्या वैल्यू होगी, 28 में क्या वैल्यू होगा, 29 में। यू ऐड दिस क्वेश्चंस इफ यू वांट टू रीड दिस प्रोविजन केयरफुली, सेक्शन 6 to 55। आप 3 क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखना, 3 फंडामेंटल क्वेश्चंस। What facts are relevant and why they are relevant? What तो आपको पता चल गया लगभग, लेकिन वो रटना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है। Why they are relevant? This will help you in memorizing what I tell you, and what is its evidentiary value. जैसे एडमिशन का एविडेंसरी वैल्यू क्या है, सेक्शन 31। एडमिशंस में स्टॉप, इसने ये नहीं कहा कंक्लूसिव एविडेंस से देख लो। सेक्शन 34 ने ये नहीं कहा ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट है ये सफिशिएंट एविडेंस से पढ़ना वर्ड्स 34 के। क्वेश्चन बनाना है तो तह तक जाओ, नहीं तो फिर मात खाओ। और सीखना है तो बैरक लेकर के आओ, नहीं तो फिर घूमते रह जाओ। बातों बातों में ही बहुत सारी बातें आ जाती जो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। इफ यू डू नॉट लिसन टू मी then God will bless you, because I will be not able to bless you then. Though God has sent me here for this purpose only, He talks to me every day and He tells me every day that you serve the students as much as you can, but I will be able to serve you only if you listen to me. I will be helpless otherwise. Is this clear? तो सेक्शन 34 में देख लिया आपने, what is written, how much is the evidentiary value? बताया भी नहीं है इतने देर में तुमने। लिखा है ना नॉट अलोन सफिशिएंट, यही तो कह रहा था। और ये बुक्स ऑफ अकाउंट है, पेजेज ऑफ अकाउंट नहीं है, एंड इट शुड बी इन रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस। यही आपसे कह रहा हूं, ये प्रिसीशन पढ़ने में चाहिए हमें, ये प्रिसीशन हमें पढ़ने में चाहिए होगा। तो 34 में अकाउंट बुक देख ही लिया, 35 में पब्लिक रिकॉर्ड देख लिया, 36 में पीसीएम बता ही दिया। कहाँ तक पहुँच गए थे हम? ये तो कर लिया था ना। ओहो, हाँ 49 ओपिनियन एज टू यूसेज। अब यहाँ भी देखो वन वर्ड कर लेना भाई, ये कस्टम ऑफ राइट है, 48 में यूसेज और टीनेट्स है, 49 में रिलेशनशिप, 50 में। तो जो भी आपको दिखे फॉर्मूला, ट्राई टू नाउ क्रिएट अ काइंड ऑफ फॉर्मूला
जैसे मैंने आपके बेयर एक्ट में लिखा, हाउ डू यू प्रूव हैंड राइटिंग, इस पे भी सवाल आया हुआ है. This is how the questions are generated. How do you prove handwriting? Objective question. Ground of opinion. जब opinion देख लिया तो what is the ground? इसका आधार क्या है? Ground of opinion. जैसे मैं आपको बता रहा हूं तो क्वेश्चन देख के बता रहा हूं, ground of my opinion. So if my opinion is relevant, what is the ground of opinion? That is also relevant. So question paper is relevant. Is this clear? $52 में सिविल, 53 में, 54 में आप फिर वन वर्ड बनाओ, नहीं तो पछताओ. Now this was part 1 of Indian Evidence Act. Chapter 1, Chapter 2. ऐसे तो ऐसा कोई सवाल पूछते नहीं है, बट ऐसा कोई सवाल पूछते हैं क्या? देखना. This is part 1. Now if you see part 2 of Indian Evidence Act, now first of all it says that if the facts are judicially noticeable, then it is not required to be proved. Judicially noticeable facts are given in 56 to 58. Then it says if it is not so, then it can be proved by oral evidence. This is how you should write. I have written in my Bear Act also. Please see it carefully. And then proved by documentary evidence. So either you prove those evidences either by oral evidence or by documentary evidence. And you can prove everything by oral evidence unless and until it is excluded by documentary evidence, which is there in section 91 to 100. Which is there in section 91 to 100. So I have written which may be judicially noticeable, which is not required to be proved, and if it is to be proved, then it can be proved by oral evidence, or if it is or by documentary evidence, unless and until it is excluded by documentary evidence. 91 to 100 clearly say that in certain situations you cannot prove it by oral evidence because document is available, and section 144 of Indian Evidence Act says that if document is there, you please bring the document rather than bringing the oral evidence. You may lie. What you say today, what you say tomorrow may not be correct. But if it is documented, then it is perfectly all right. Because otherwise you will be victim of, हमारे साथ तो ये 99% केसेस में होता रहता है हमारे ऑफिस में. 99% केस में यही प्रॉब्लम, बिकॉज नोबडी वांट्स टू डॉक्यूमेंट एनीथिंग. छोटे मोटे इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन में ये सब समस्याएं रहती है. इसीलिए हम हर कार्य क्या करते हैं, no confusion for anyone, it brings clarity also, it's good. And that is why court says in 144, if you have document, bring the document. Section? अब देखो इसमें भी बहुत सारे सवाल हैं. In this part also you have many questions. लेकिन एक तो पहले ही क्वेश्चन बता दिया. अब तुमने कहा जुडिशियली नोटिसेबल, तो ये बताओ पहले जुडिशियली नोटिसेबल फैक्ट्स कौन कौन से. अब इसकी लॉन्ग लिस्ट है. तो व्हाट आई विल सजेस्ट, यू शुड नॉट ट्राई टू मेमोराइज एवरीथिंग, बट यू रीड इट केयरफुली once, twice, thrice, 10 times. भाई पढ़े रहोगे तो कम से कम ये तो ध्यान आएगा कि पढ़ा था कहीं. आई हैव रेड इट, सो यू कैन डू दिस स्क्रूटनी. जैसे लिखा ऑल लॉज,
फॉरेन लॉज नो। अगर तुमने ऐसे ही बनाया हिंट, लॉज यस, फॉरेन लॉ नो, हिंट बनाओ, साइनॉप्सिस। देन पब्लिक एक्ट्स पास्ड बाय यूके पार्लियामेंट, लोकल पर्सनल एक्ट्स यस, आर्टिकल्स ऑफ वॉर फॉर इंडियन आर्मी नेवी एयरफोर्स यस, proceeding in parliament, reports etc yes, accession and sign manual, accession, what you have, accession of Jammu and Kashmir, all seals of English courts, all courts in India including notary public। तो कोई छोटे छोटे क्वेश्चन, नोटरी पब्लिक भी लिखा है। signature of gazetted officer, DM, honorary magistrate when it is made in official capacity, judicial notice of attestation and signature of sub register। अब देखो इसमें 3 कैटेगरी लिख दिया, gazetted officer, DM, honorary magistrate when in official capacity, sub registrar। Now this can be a good question। देखो हाउ प्रिलिमिनरी क्वेश्चंस, ऐसे ही ये मैं पढ़ता हूं, आई हैव दिस हिंट इन माय माइंड दैट दिस कैन बी ए गुड क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन। प्रिलिमिनरी इज एग्जामिनेशन ऑफ स्क्रूटनी, so they are not there to test your exact understanding or knowledge, they are there to scrutinize the students who are competent to or who are now desirable or deserving to appear in मेंस एग्जाम। तो उसमें ऐसे क्वेश्चंस अपेक्षित हैं, पूछेंगे आपसे, एंड यू कैन से दैट आई विल नॉट आंसर सच क्वेश्चन, इट्स फैक्चुअल। सब रजिस्ट्रार, ऑनररी मैजिस्ट्रेट व्हेन इन ऑफिशियल कैपेसिटी, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एंड फर्दर मोर व्हाट आई सेड, गजेटेड। आपको याद करने में क्या जा रहा है, याद कर लो। GM, DM, HM, देखो है नहीं है, GM, DM, HM, गजेटेड, भाई GM बना दिया उसको, DM है ही, HM ऑनररी मैजिस्ट्रेट है ही, और लास्ट वाला RM, अरे वही भाई रजिस्ट्रार है, मैंने उसको RM बनाया। हर चीज परफेक्शन से थोड़ी आएगी, तुम तो लगे शब्दों का खेल खेलने, हम जादू कर रहे हैं, तुम शब्दों का खेल खेल रहे हो। GM, DM, HM, RM याद हो गया मुझे तो, आपको नहीं हुआ तो छोड़ दो, वापिस देके जाना मुझे, हमें तो हो गया। अरे भाई हो गया नहीं हुआ, GM, DM, HM, RM, अब इतना भी याद नहीं हुआ। R से रजिस्ट्रार पढ़ा था और G से साहब गजेटेड ऑफिसर पढ़ा था, तो फिर एम्बिशन का विद्यार्थी होने पे आगे नहीं बोलूंगा। टाइटल, नेशनल फ्लैग, टाइम, जोग्राफिकल डिवीजन, पब्लिक फेस्टिवल, फास्ट, हॉलीडेज। छुट्टियां तो ऐसे भी सबको पता होती है, काम का दिन पता होना हो। पब्लिक फेस्टिवल सबको पता होता है, वो उपवास करना होता है ना उस दिन। पब्लिक फेस्टिवल, फास्ट, हॉलीडेज, छुट्टियों का दिन। पॉलिटिकल डिवीजन, वेयर इज विच स्टेट, यहाँ है हमारा उत्तराखंड, वहाँ है तुम्हारा उत्तर प्रदेश, यहाँ है मेरी सरकार केजरीवाल जी की पंजाब में, और वहाँ है तुम्हारी खट्टर साहब की। इज दिस क्लियर? तो ये सब भी जुडिशियली नोटिसेबल है। हॉस्टिलिटीज एक बार पढ़ लो, ऐसा नहीं बिल्कुल छोड़ देना,
सिफर नहीं होना चाहिए, सिफर, जीरो। फैक्ट्स एडमिटेड इन डिड नॉट बी प्रूव्ड, सेक्शन 58 जुडिशियल एडमिशन यही बोल रहा था। व्हेन आई हैव एडमिटेड व्हाई विल यू प्रूव एडमिशन? अब एक क्वेश्चन बना ऐसी, इन विच केसेस प्रूफ इज डिस्पेंस्ड विथ, उसमें ऑप्शन बना दिया एडमिशन, स्टॉपल, प्रिजम्पशन, ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस, स्टॉपल भी डिस्पेंस करता है, एडमिशन भी डिस्पेंस करता है, प्रिजम्पशन जब तुमने खुद रेज कर दिया तो मैं क्या करूंगा उसमें? उस फैक्ट्स को तो प्रूव करने की जरूरत नहीं है। हाँ, कोर्ट जब कहेगा तो साबित करेंगे, अदरवाइज तो प्रिजम्पशन है ही, ये होगा। चोरी का सामान तुम्हारे पास है ना, इसका मतलब तुम ओरल एविडेंस। अब देखो यही क्वेश्चन बना देगा, ऑल फैक्ट्स एक्सेप्ट द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक मे बी प्रूव्ड बाय, सो व्हिच फैक्ट्स कैन बी प्रूव्ड बाय ओरल एविडेंस, यही क्वेश्चन बना दिया। all facts except content of document, all facts except electronic record, none of this, क्वेश्चन बना दिया। कुछ इस तरह क्वेश्चन फॉर्मुलेट कर दिया तुरंत। इसलिए बेयर प्रोविजन को ध्यान से पढ़ने का। ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट, तुमने देखा तुम बताओ, तुमने सुना तुम सुनाओ, दूसरा क्यों बता रहा है? हेयरसे एविडेंस नहीं चलेगा। ओरल एविडेंस मस्ट बी, जिसने सुना, जिसने कहा, जिसने देखा। अब ये देखो प्रोवाइडो वगैरह से क्वेश्चन आ जाएगा इसमें। प्रोवाइडेड दैट opinion of expert expressed in any treatise commonly offered for sale and the grounds on which such opinion are held may be proved by the production of such treatises if the author is dead or cannot be found. Is this clear? अब documentary evidence, contents of document, अब तुमने बना लिया all facts except content of document electronic, content of document will be proved by primary evidence, document itself। अब इसे भी क्वेश्चन बनाया, explanation 1, explanation 2, explanation 1 के सेकंड पार्ट से, काउंटर पार्ट इज प्राइमरी एविडेंस अगेंस्ट whom, प्राइमरी एविडेंस अगेंस्ट द पर्सन हु हैज मेड इट, एंड सेकेंडरी एविडेंस अगेंस्ट द पर्सन अगेंस्ट whom it is made। ये क्लास में बताएं बहुत अच्छे से। Counterpart which I have prepared is primary evidence against me, and counter evidence which I have prepared against you, which is not executed by me, then it is secondary evidence against you, क्योंकि तुम्हारा हस्ताक्षर उस पे, the document which I signed is primary evidence against me। अब मैंने अपने बैरक में लिखा व्हेन कार्बन कॉपी कैन बी कंसीडर्ड प्राइमरी एविडेंस। एक्सप्लेनेशन 2 टू सेक्शन 62 में ये व्याख्या दी गई है। सेकेंडरी एविडेंस कौन कौन से हैं, क्वेश्चन पूछ देगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। सर्टिफाइड कॉपी, कॉपी मेड फ्रॉम ओरिजिनल, कॉपी मेड फ्रॉम और कंपेयर्ड विद ओरिजिनल, काउंटर पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट एज अगेंस्ट द पार्टी वुड नॉट एग्जीक्यूट, दिस इज द काउंटर पार्ट जो मैंने कहा आपसे 63(4), and oral accounts of content of document, they are secondary evidence। Now it is written in Barak very beautifully, you read it in note also। Newspaper report, सुप्रीम कोर्ट ने कहा न्यूज़पेपर रिपोर्ट को हम कोई एविडेंस नहीं मानते अनलेस एंड अनटिल जो न्यूज़ पे रिपोर्टर है वो आएगा और ओरिजिनल रिपोर्ट लाएगा, मुझे दिखाएगा, तब मैं इसको मानूंगा, अदरवाइज तो एक प्रकार का ओपिनियन है। इसमें क्या है, डॉक्यूमेंट मस्ट बी प्रूव्ड बाय प्राइमरी एविडेंस एक्सेप्ट इन केसेस एंड आफ्टर एक्सेप्टेड। 65 व्हेन यू विल गिव दिस सेकेंडरी एविडेंस, मिल ही नहीं रहा, क्या करूं, and you are keeping the original and you are not producing, the court will obviously allow me to produce secondary evidence, I don't have original।
This is landlord as original and tenant as secondary. A landlord does not produce the tenancy agreement if there is any dispute. So tenant will obviously bring the secondary evidence. Is this clear? Section 65. 65A, electronic evidence. Admissibility. 65B, क्वेश्चन आया था, बताया ना आपको, रिसेंट केस अर्जुन पंडित राव खोटकर वर्सेस कैलाश कुशान राव गोरंत्याल 2020 डिसीजन. मैंने अभी इंटरव्यू में भी पूछा था, व्हाट इज लेटेस्ट लॉ ऑन इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, क्वेश्चन बनाया मैंने. Rules as to notice, proof of signature and handwriting of person alleged to have signed or written document produced. How do you prove signature? यहाँ भी लिखा है 4 points. By calling a person who signed, on whose presence it was signed. Handwriting expert. Bare Act में लिखा है, please see this carefully. How do you prove will? How do you prove this? Any document. Section 68, proof of execution of document required by law to be attested. How do you prove attested document? Then I see 68, you just read it, I have written it here also. When no attesting witness found. '73, which I said is very, very important. But you just see all sections in evidence law, I can't guarantee that this will not be asked, mind you. This is not possible in evidence law. This may be possible in all laws, but not here. अच्छा, एक केस में कोर्ट ने ये भी कहा कि टू मच emphasis on court's opinion as far as handwriting etc. is concerned is not good, because court is not expert of handwriting. So rather it should be that the handwriting expert's opinion should be given due weight. Just read, I have written in my bare act. मैंने डिटेल इसका लिखा है. पब्लिक डॉक्यूमेंट, एक सवाल इस पे भी आया, डीजेएस में क्वेश्चन आया इस पे भी. पब्लिक रिकॉर्ड में कौन कौन सा आता है, पब्लिक डॉक्यूमेंट में कौन कौन सा नहीं आता है. देखा था कोई क्वेश्चन आया इस पे भी. इसमें वही पूछा है ना, वेदर दिस copy of registration of documents registered with registrar. It is kept in registrar office. That was the major question. Whether it is public record or not. That is record of private documents. Whether it is public document or not. Records of private documents kept in registrar office. Whether it is public document, private document. It is public document because it is kept in public office as public record. उसमें एक था pronote signed by you, something like that. So that is private document. I will not emphasize on all these other situations here. Presumptions as to document, genuineness of document. Now again I will say that you just see certified copy 79, record of evidence 80, like 164, etc. Certified copy, C, evidence 80, record of evidence. Then this 81, gazettes, newspapers. 81A, electronic. नहीं, कभी कुछ पूछ ले तो don't blame me for that. I am just giving you 83. MP3, 83 MP3, maps, plans.
Laws and reports, 84. Just pick the word. '85, power of attorney. '85A, agreement. Electronic agreement, obviously. '85B, एग्रीमेंट हो गया तो एग्रीमेंट पे साइन करना, और साइन करने के बाद उसका सर्टिफिकेट भी चाहिए. एग्रीमेंट साइन सर्टिफिकेट. एग्रीमेंट साइन सर्टिफिकेट 85ABC. 86, foreign judicial records. Foreign F6. F is sixth alphabet. BMC कब बना था? बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. अब अपने से लिख देना 87. मैंने तुमसे सवाल पूछा बीएमसी कब बना था, तुमने कहा 87. It is not a real question, it is not a real answer, but this is a question and answer just to keep you informed about this fact that 87 is related to books, maps, plans. क्या है? Books, maps, charts. BMC, Bombay Municipal Corporation. मैसेज 88 नहीं, 88 में मैसेज है. देखो इन सबों का कोई वो नहीं है, बट मुझे नहीं लगता ऐसा कोई सवाल आना चाहिए, बट आ जाए तो क्या कर लेंगे आप, क्या कहेंगे एग्जामिनर को, आप क्या कर सकते हैं? कोई धरना प्रदर्शन का स्कोप है क्या? तो इसलिए बेहतर है कि थोड़ा कुछ तरीका बना लो. 90 में डॉक्यूमेंट्स 30, अब ये 30 ईयर्स पूछा हुआ एग्जाम में, बट इट शुड बी इन प्रॉपर कस्टडी, माइंड यू. सो दिस इज द कैच, प्रॉपर कस्टडी. जिसके पास होना चाहिए था उसी के पास है. एक्सप्लेनेशन क्लियर? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स 5 ईयर्स ओल्ड. अब ये टाइम पूछ देगा. 98. Exclusion of oral by documentary evidence. 91 is very, very important. Again, you are required to now read this section very, very carefully. You cannot adopt the same approach which you adopted in between. You have to change the gear here and you have to read it very, very carefully. When the terms of contract or of grant or other any disposition of property have been reduced to the form of document, and in all cases in which any matter is required by law to be reduced to the form of document, no evidence shall be given in proof the terms of such contract, grant. अब देखो ये वर्ड्स पे सवाल पूछ देंगे. Contract, grant or other disposition or of such matter except the document itself or secondary evidence of its content in cases in which secondary evidence is admissible under the provisions herein before contained. So, the terms of contract, grant or other disposition, now you just see this carefully. C, D, G. C, D, G क्या होता है? अरे यार तुम कभी पेरिस गए हो? एयरपोर्ट का क्या नाम है? तो वही तो है ये. विदेश घूमोगे तब तो सीखोगे. अब इसमें मैं क्या कर सकता हूं?
ये तो मैं दिमाग तो लगाना पड़ेगा, देख लो भाई, दिमाग का बहुत इस्तेमाल है, नहीं करोगे तो नहीं होगा। वो पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, चश्मे का पावर बढ़ते रहेगा बढ़ते रहेगा। हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अब मुझे नहीं लगता कि हम आपको अगला 70 सेक्शन आज बता पाएंगे।